प्यारे बच्चों, मेरी वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓ ਦਾ ਟੀਚਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁੱਬਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ +1 ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਅਤੇ ਮਿਓਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਤੇ ਮਿਓਸਿਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ G1 ਫੇਜ਼, G2 ਫੇਜ਼ ਤੇ S ਫੇਜ਼। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਓਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਤੇ ਮਿਓਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਓਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਸਟੇਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ: ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼, ਮੈਟਾਫੇਜ਼, ਐਨਾਫੇਜ਼, ਟੀਲੋਫੇਜ਼। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ? ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼, ਮੈਟਾਫੇਜ਼, ਐਨਾਫੇਜ਼, ਟੀਲੋਫੇਜ਼। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਿਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਤੇ ਮਿਓਸਿਸ 'ਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ 4 ਸੈੱਲ ਬਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ 2 ਸੈੱਲ ਬਣਨੇ ਆ। ਪਰ ਮਿਓਸਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੈੱਲ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਲ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਿਟੋ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵਲੀ ਤੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵਲੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਲ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। तो आप स्टार्ट करते हैं सब तो पहलों मिओसिस की स्टार्ट कर रहे हैं जी, मिओसिस। सो मिओसिस का जिवें आप करना है प्रोफेज। सो प्रोफेज 1 इहदी स्टेज आएगी, ठीक है। ये 2 भागों च डिवाइड किया है, प्रोफेज 1, मैटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उस तो बाद ये दोबारा सैल डिवाइड होएगा प्रोफेज 2, एनाफेज, मैटाफेज 2, एनाफेज 2 ते टीलोफेज 2, इस तरह। बट ये ਮਾਈਟੋਸਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਿਓਸਿਸ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਨਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਜਿਸ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਤੇ ਮਿਓਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, DNA ਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ DNA ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਗੇਨੈਲਿਸ ਨਵੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਫॉर ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਓਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਈਵੈਂਟ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਓਸਿਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 1 ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 5 ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ: ਲੈਪਟੋਟੀਨ, ਜ਼ਾਈਗੋਟੀਨ, ਪੈਕੀਟੀਨ, ਡਿਪਲੋਟੀਨ ਤੇ ਡਾਇਕਨੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 5 ਸਟੇਜਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅੱਗੇ +2 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 1 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਪਟੋਟੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਪਟੋਟੀਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਬਟ
ਜਿਹੜੇ क्रोमेटिन फाइबर्स ने ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਲੌਂਗ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਡਸ ਲਾਈਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਸਟਾਰ ਲਾਈਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ। ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰੀਓਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ क्रोमेटिन फाइबर्स ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਥਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥਿਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਲੈਪਟੋਟੀਨ ਸਟੇਜ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, क्रोमेटिन फाइबर्स ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਲੌਂਗ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਾਈਗੋਟੀਨ ਸਟੇਜ। ਜ਼ਾਈਗੋਟੀਨ ਸਟੇਜ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇजेस ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਈਗੋਟੀਨ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਥਿਕ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਥਿਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो इन्हों की पेयरिंग हो जाती है। बट एक गल याद रखनी है कि ये क्रोमेटिड एक ही आ, देखो साइडों से दोनों साइडों से एक एक क्रोमेटिड ही आ। ठीक है जी। इन्हों की पेयरिंग हो चुकी है, इन्हों मैं दो कलर ना ड्रा किया है। ठीक है, ताकि सानू क्रॉसिंग ओवर अगे नज़र अच्छी तरह आ सके। ठीक है। तो ये सेंट्रीओल बार क्लीयर कट नज़र आ रही है। इस तो इलावा सानू न्यूक्लियोलस भी अंदर नज़र आ रहा है। ठीक है। क्रोमोसोम पेयरिंग दे विच है, इनू कलर्ड ड्रा किया गया है क्योंकि सानू डीमार्केशन पता लग जाए। ठीक है जी। सो आ देखो सैल एस स्टेज ते एस स्टेज कुछ डिफरेंस है, तुहानू क्लीयर कट नज़र आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड ज़ाइगोटीन स्टेज। सो नैक्सट स्टेज इज कॉल्ड पैचीटीन स्टेज। पैचीटीन स्टेज जिहड़ी आ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੇਟਿਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਕ੍ਰੋਮੇਟਿਡ ਹੈ, ਬਟ ਪੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ देयर। ਹਜੇ ਵੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ क्रोमेटिड्स। तो इस स्टेज ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਟੈਟਰਾਡ ਸਟੇਜ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ? ਟੈਟਰਾਡ ਸਟੇਜ। ਸੋ ਟੈਟਰਾਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਲਰਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਟੈਟਰਾਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਪੇਅਰਿੰਗ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਬੋਥ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। एक सेंट्रीओल का पार्ट इधर जा रहा है, इधरों सेंट्रीओल्स इधर जाना स्टार्ट हुई है हजे। ठीक है जी। दे आर पुशिंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, एक दूजे पोल्स वाल जा रही है। जिहड़ा न्यूक्लियोलस है अंदर, ठीक है जी, वो जस्ट थोड़ा जिहा डीजनरेट करना स्टार्ट होया, पूरा नहीं डीजनरेट करना, अजे जस्ट स्टार्ट ही होया न्यूक्लियोलस। बट क्रोमोसोम्स ने जिहड़े दे आर इन पेयरिंग, हजे भी पेयरिंग उन्हां दी बरकरार है। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड टैटराड स्टेज। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, पहली स्टेज सी लैप्टोटीन स्टेज। क्रोमोसोम स्मॉल लॉन्ग थ्रैड लाइक सीगे बट क्लीयर कट सीगे। ਜ਼ਾਈਗੋਟੀਨ स्टेज पेयरिंग हुई जिन्हों साइनैप्सिस कह दें आपां, ते नाल क्रोमोसोम शॉर्ट अते थिक हो गए। उस तो बाद अगली स्टेज पैचीटीन स्टेज है। इट इज़ कॉल्ड टैटराड स्टेज। ये क्रोमेटिड्स जिहड़े ने वो चार चार बन गए, नाल ही सेंट्रीओल भी डिवाइड कर गए। सेंट्रीओल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। न्यूक्लियोलस आ जिहड़ा इट जस्ट स्टार्ट डिग्रेडिंग, माड़ा जिहा डिग्रेड करना स्टार्ट किया है। ठीक है जी। न्यूक्लियर मैंबरेन
क्लीयर है तो सैल मैंबरेन इज स्टिल क्लीयर। ठीक है, ये गल याद रखनी है कि कित्थे किहड़ी स्टेज किहड़ी चेंज आ रही है। ठीक है जी। तो इस तो अलावा नैक्सट स्टेज अपनी आ रही है जी डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज जिस तरह के एक एक स्टेज की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, इस डायग्राम की इस स्टेज की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। इस स्टेज दे विच जरा क ध्यान नाल देखो कि क्रोमोसोम जिहड़े आ उन्हां दे क्रोमेटिड्स ने होमोलोगस पेयर दे ओवरलैप कर जाते हैं एक दूजे के उत्ते। ठीक है जी, आ देखो ओवरलैप इधरों भी इधरों। द पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग जिस जगह तो वो ओवरलैप कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस, एक क्रोमोसोम आ वा दूसरा क्रोमोसोम आ वा, आ जिहड़ा पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग है, आ जिहड़ा पॉइंट जिस जगह ते ओवरलैप कीते ने, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्याजमा। इस पॉइंट नूं क्याजमा कहा जाता है। इस करके इस स्टेज का एक होर नाम है क्याजमेटा स्टेज। प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट आंसर छोटे आंसर तुहानूं क्वेश्चन आ सकता है। डिप्लोटीन स्टेज का दूसरा नाम की है, पैचिटिन स्टेज का दूसरा नाम की है, जाइगोटिन स्टेज का दूसरा नाम की है। सो एक एक स्टेज का नाम दूसरा नाम क्यों है? क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द करैक्टर। सो ये साइनैप्स है, ये क्याजमेटा बन रहा वा, क्याजमा बन रहा, इस करके क्याजमेटा स्टेज। ठीक है जी। एक होर करैक्टर है सेंट्रियोल, थोड़ी होर दूर जा चुकी है दोनों साइडों तो। इट इज स्टिल मूविंग टुवार्ड्स अपोजिट पोल्स, ये हजे भी अपोजिट पोल्स वाल मूव कर रही है। नाल ही नाल न्यूक्लियोलस, जिहड़ा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, इट इज डीजनरेटिंग, ये डीजनरेट कर रहा है हौली हौली करके, खत्म हो रहा है, इन्हें हौली हौली अगलियां स्टेजिस से जाके खत्म होना है। ठीक है जी। सो इन्हां स्टेजिस नूं याद रखना है। न्यूक्लीयर मैंबरेन जरा अच्छी तरह ध्यान नाल देखो प्यारे बच्चों, न्यूक्लीयर मैंबरेन है जिहड़ी ये भी डीजनरेट करना स्टार्ट हुई है। सो तीन चीज़ां डीजनरेट कर रही ने, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लीयर मैंबरेन, ते ये दो चीज़ां डीजनरेट कर रही, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लीयर मैंबरेन ये डीजनरेट कर रही ने, ते नाल ही सेंट्रियोल्स जिहड़ियां ने वो ऑपोजिट पोल्स नूं मूव कर रही ने। ठीक है, पर ये इस जगह ते क्रॉसिंग ओवर हुई आ, इस जगह की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इस जगह ते क्याजमा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर मैं दसन जा रहा है, प्यारे बच्चों अच्छी तरह नोट करियो। जिस जगह ते इन्हां दी ओवरलैपिंग हुई है, द पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग जिस जगह ते आ उन्होंने क्याजमा कहा जाता है, तो जिस जगह ते क्याजमा है उतों ये दोनों क्रोमोसोम्स ब्रेक कर जाते हैं। इस जगह जिहड़ा आपां ब्लू कलर दिखाया है तो रैड कलर दिखाया है, ये क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के पार्ट्स ने जिहड़े उस जगह तो ब्रेक हो जाते। ब्रेक होंदियां सार ही जिहड़ा दे एक्सचेंज देयर ब्रोकन पार्ट्स, यानी कि जिहड़ा उहदा पार्ट है वो दूसरे क्रोमोसोम ते लग जाएगा तो उहदा पार्ट्स लथ के उहदे ते लग जाएगा। ठीक है जी। सो एक्सचेंज देयर ब्रोकन पार्ट्स, एदी इंपॉर्टेंस है, इट इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो आप बहुत सारे बच्चे आ वो ड्रा करन लग्या जां तो वो इनू ड्रा नहीं ठीक करते। ठीक है जी, जां वो ड्रा करन लग्या इन्हां दी जिहड़ी आ ब्रेक होने तो बाद दोबारा वही पार्ट उहदे ते जॉइन कर देंगे। प्यारे बच्चों ये याद रखियो कि ये ब्रेक होने तो बाद वही पार्ट नहीं लगना, ब्रेक होने तो बाद दे एक्सचेंज देयर ब्रोकन पार्ट्स। जिहड़ा लैफ्ट वाला क्रोमोसोम है उत्ते राइट वाला पार्ट लग जाएगा, राइट वाले ते लैफ्ट वाला पार्ट लग जाएगा। ठीक है, ये करैक्टर याद रखना है कि वो ब्रोकन पार्ट्स जिहड़े ने एक्सचेंज कर लेंगे ने। ये इस स्टेज ते डिप्लोटीन स्टेज ते होना है। ठीक है प्यारे बच्चों, नैक्सट प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज है डायाकाइनेसिस स्टेज। डायाकाइनेसिस स्टेज ते की हुंदा है कि ब्रोकन पार्ट्स एक्सचेंज करन तो बाद दे स्टार्ट सैपरेटिंग, क्रोमोसोम्स जिहड़े ने दे स्टार्ट सैपरेटिंग, बट सैपरेटिंग एग्जैक्टली एकदम नहीं हो जाती। प्यारे बच्चों सैपरेटिंग हुंदी आ इन ए जिपर लाइक मैनर, जिवें जिप खुलदी आ, जिप एक दूसरे तो सैपरेट हुंदी आ, उस तरह जिपर लाइक मैनर से इन्होंने सैपरेट होना है। इस तरह नहीं सैपरेट होना, मैं तुहानूं एक दिखाउणा है। जस्ट लाइक आ एक
क्रोमेटिड है, एक आ क्रोमेटिड है, दे ओवरलैप तो बाद एक्सचेंज किए इन्होंने ब्रोकन पार्ट्स, एक्सचेंज कर ले। हुण एक्सचेंज करन तो बाद इन्होंने इस तरह ए सैपरेट नहीं होना, ठीक है जी, दिस इज़ रॉन्ग। इन्होंने जिपर लाइक मैनर च सैपरेट होना, इस तरह लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, जिपर लाइक मैनर च इन्होंने सैपरेट होना। तो सैपरेट होने तो बाद आ चीज़ सानूं नज़र आएगी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਰਟ ਦੂਸਰੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਬਿਕਮ ਸੈਪਰੇਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੋਕਨ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਹੈ ਇਹ ਅਬਾਊਟ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪੋजिट पोल्स ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਆਲਮੋਸਟ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਵੈਲਪ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪੋजिट ਪੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, 5 ਸਟੇजेस, ਲੈਪਟੋਟੀਨ, ਜ਼ਾਈਗੋਟੀਨ, पैचीटीन, डिप्लोटीन, डायाकिनेसिस। ये 5 स्टेजेस। पहली लैप्टोटीन, क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक, क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट एंड थिक पेयरिंग। टैट्राड स्टेज, उन्होंने 4 आर्म्स बन गई। डिप्लोटीन स्टेज, ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग होने तो बाद ਕਿਆਜ਼ਮਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਆਜ਼ਮਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰੋਕ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇਅਰ ਬ੍ਰੋਕਨ ਪਾਰਟਸ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਾਇਆਕਨੈਸਿਸ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਤੋਂ बेटा हुण आपां गल करांगे, ये प्रोफेज 1 स्टेज क्लीयर हुई है, ठीक है जी। सो इहदे च आपां मेन चीज़ जिहड़ी देखी है इस 5 स्टेजिस दे विच क्रॉसिंग ओवर, ये वर्ड याद रखना है। क्रॉसिंग ओवर मीनस क्रोमोसोम्स ओवरलैप एंड ब्रेक एंड दे एक्सचेंज देयर ब्रोकन पार्ट्स, आ चीज़ हुई। नैक्सट आ गई जी मैटाफेज 1, जिवें प्रोफेज 1 है, दिस इज कॉल्ड मैटाफेज 1। सो मैटाफेज 1 मतलब कि ये जिहड़ी सेंट्रीओल्स ने दे रीचिज टू देयर ऑपोजिट पोल्स, ये ऑपोजिट पोल्स ते पहुंच चुकी है। इन्होंने पहुंचदे सार ही ऑपोजिट पोल्स ते न्यूक्लियर मैंबरेन एज वेल एज न्यूक्लियस डिसअपीयर कंप्लीटली, हुणे नज़र नहीं आउणगीआं इस स्टेज ते, पूरी तरह खत्म हो चुकियां ने। ते सेंट्रीओल दोनों ऑपोजिट पोल्स ते पहुंच चुकी है ते स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुकी है, स्पिंडल बन चुकी है। ते सारे क्रोमोसोम देखो स्पिंडल के विचकार सेंटर ते आ गए। इस सेंटर वाले रीजन को कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन स्पिंडल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट। इन्हों के दोनों ऑपोजिट पोल ते सेंट्रीओल, इधर भी सेंट्रीओल, ठीक है जी। तो सेंट्रीओल की टेंशन क्रिएट हो चुकी है क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। सो जो सेंट्रीओल की टेंशन क्रिएट हो चुकी है तो ये दोनों साइडों तो इन्हों जिवें टेंशन क्रिएट हो रही है, खिंचाव पैदा हो रहा है, ठीक है जी। सो क्रोमोसोम बिकम प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है जी। सो ये मैटाफेज 1 है, प्रोफेज 1 होगी, मैटाफेज 1 होगी। हुण आपां नैक्सट स्टेज करांगे, अपनी नैक्सट स्टेज है एनाफेज 1। एनाफेज 1 का मतलब है कि जिहड़े क्रोमोसोम ने, ठीक है जी, जिन्ने भी क्रोमोसोम ने, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स वन पोल, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अदर पोल अंडर द टेंशन ऑफ सेंट्रीओल, सेंट्रीओल वाल जाने शुरू हो गए, ठीक है जी। जे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग च 46 क्रोमोसोम्स ने, 46 तो विचों 23 इधर ते 23 इधर जाने स्टार्ट हो जाए। जेड़े भी जीव जंतु च मियोसिस होएगी उन्हां च ये होएगा, अद्धे क्रोमोसोम इधर जाने शुरू हो जाएंगे,
ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਸਟਰੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ 1। ਟੀਲੋਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਦੇ ਰੀਚਸ ਟੂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ। ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਵੈਲਪ ਰੀਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਓਸਿਸ 1। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਓਸਿਸ 1। ਮਿਓਸਿਸ 1 ਚ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 1, ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 1, ਐਨਾਫੇਜ਼ 1 ਐਂਡ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ 1। ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 1 ਦੀਆਂ 5 ਸਟੇਜਸ, ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣੀ। ਐਨਾਫੇਜ਼ ਦੀ फेज च क्रोमोसोम्स आर मूविंग, टीलोफेज च पहुंच गए। ठीक है जी, 2 सैल्स बन गए। मियोसिस 1 खत्म हुई। मियोसिस 1 नू रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, अद्धे रह गए ने क्रोमोसोम नंबर। इस तो बाद स्टार्ट होएगी मियोसिस 2। ठीक है जी। वो डिस्कस करने तो पहले मैं दसदा कि मियोसिस 1 च क्रोमोसोम नंबर अद्धा रह जाता है ਤੇ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਓਸਿਸ 2, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 1। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸੈੱਲ 2 ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਸਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 2, क्रोमोसोम पूरी तरह क्लीयर नज़र आ रहे हैं। न्यूक्लियोलस सानू नज़र आ रहा है। न्यूक्लियर इनवैलप क्लीयर है। तो इधरली साइड ते सेंट्रीओल है। ये सेंट्रीओल वो ही है जो डिवाइड होकर इतों तक पहुंचा सीगा पिछली स्टेजिस। ठीक है जी। नाउ दिस सैल इज अगेन रेडी फॉर डिवीजन। पर एक गल याद रखनी आ देखो मैं कलरिंग की है क्रोमोसोम्स की। कलरिंग का मतलब की है कि उन्होंने एक्सचेंज ब्रोकन पार्ट्स उस तरह चलणगे, ताकि करैक्टर अगे ट्रांसफर जो जाना वा वो वेरीएशन नाल चेंज होकर करैक्टर पहुंचेगा। पेरेंट का ओरिजिनल करैक्टर नहीं पहुंचेगा, थोड़ा चेंज होएगा। देखो जिवें रैड है, थोड़ा जिहा पीस ब्लू लगा है, आ पूरा ब्लू है, थोड़ा जिहा पीस रैड लगा है। क्रॉसिंग ओवर इन्हां हो चुकी है। ये एज इट इज चलेंगे। प्रोफेज 2 स्टेज होगी जी। नैक्सट स्टेज इज कॉल्ड मैटाफेज 2। मैटाफेज 2 आ जिहड़ी सेंट्रीओल है डिवाइड होएगी, ऑपोजिट पोल ते पहुंच जाएगी लाइक दिस। न्यूक्लियोलस डीजनरेट कर जाएगा तो न्यूक्लीयर मैंबरेन भी डीजनरेट कर जाएगी। इस जगह पर बन गई जी स्पिंडल, जिवें आपां पहलों पहुंचे। सो स्पिंडल दे विच दोनों साइडां ते सेंट्रीओल है, विचकार क्रोमोसोम्स ने। नाउ हुण क्रोमोसोम अद्धे अद्धे नहीं वंडणगे, हुण क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएंगे इनटू क्रोमेटिड्स। हुण क्रोमेटिड्स अगली स्टेज है एनाफेज 2। क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जो क्रोमेटिड्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब की है कि ये क्रोमोसोम नंबर सेम रह गया। ठीक है जी। पहले क्रोमोसोम हाफ रह गए सीगे, सो रिडक्शनल डिवीजन सी। ये क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशनल डिवीजन होएगी। केड़ी डिवीजन? इक्वेशनल, यानी कि इक्वल। तो आ क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए। ऑपोजिट पोल से पहुंचते सार ही न्यूक्लियर इनवैलप बन गया। क्रोमेटिड सेंटर च आ गए, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो गया, सेंट्रीओल साइड ते ने। ये चीज़ ही एहदे च होई है। आ चीज़ ड्रा की, आ सैल आ वा, आ वा, आ वा। सेम थिंग एहदे च भी होएगी, एहदे च, एहदे च, एहदे च, एहदे च। ਇਹਦਾ मतलब एहदे तो 2 सैल आ बन गए, एहदे तो 2 सैल आ बन गए। इट इज कॉल्ड टीलोफेज 2। की टीलोफेज 2। सो आप 4 स्टेजिस कीतियां। पहलियां प्रोफेज 1, मैटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उस तो बाद कीतियां प्रोफेज 2, मैटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ਇਹਦੇ ਚ 4 डॉटर सैल बन गए। पर सैल 2 बार डिवाइड होया। पहला मियोसिस 1, फिर मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज इक्वेशनल रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। 4 डॉटर सैल बन चुके हैं। ये 4 डॉटर सैल अपने पेरेंट की डिटो कॉपी नहीं गए, थोड़ी जी वेरीएशन आई है तो क्रोमोसोम नंबर भी हाफ रह चुका है। इसका मतलब दे आर नॉट सिमिलर विद देयर पेरेंट्स। ठीक है।
सो ये प्यारे बच्चों अपनी मियोसिस खत्म हो चुकी है। हुण प्यारे बच्चों आप स्टार्ट करांगे माइटोसिस। माइटोसिस दियां 4 ही स्टेजिस होणगियां, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है जी। बट माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, इस क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। सो आ देखो ये प्रोफेज दे विच क्रोमोसोम क्लीयर नज़र आ रहे हैं, बाहर सेंट्रीओल है, न्यूक्लीयर इनवैल्प है, तो जिहड़ा सेंट्रीओल भी है तो सैल मैंबरेन भी नज़र आ रही है। सो ये प्रोफेज। नैक्सट मैटाफेज। मैटाफेज के विच सेंट्रीओल डिवाइड करेगी, ऑपोजिट पोल पर पहुँच जाएगी। ऑपोजिट पोल पर पहुँचदे सार ही न्यूक्लीयर इनवैल्प तो न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा। तो आ जो क्रोमोसोम्स ने दे आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल रीजन। नैक्सट एनाफेज 1। एनाफेज 1 दे विच की कर सकते, सॉरी नैक्सट एनाफेज। एनाफेज दे विच की होएगा जी, क्रोमोसोम्स ब्रेक्स इनटू क्रोमेटिड्स, तो क्रोमेटिड्स दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम नंबर अद्धा नहीं रहा, हुण क्रोमेटिड्स मूव करने स्टार्ट हो गए। तो लास्ट स्टेज इज टीलोफेज। टीलोफेज दे विच 2 डॉटर सैल बन गए, क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल ते पहुंच गए ने, बाहर सेंट्रीओल नज़र आ रही है, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दे विच क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं। तो इन दिस वे 2 डॉटर सैल्स आर फॉर्मड। ठीक है जी। तो पहले दे विच मियोसिस च की सीगे 4 डॉटर सैल बने सी, इहदे च 2 डॉटर सैल है। ए डॉटर सैल्स दे आर क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली सिमिलर विद देयर पेरेंट सैल, बट मियोसिस च इट वाज नॉट सो। ठीक है। सो इनू आप इस तरह कर सकते हैं, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज, यानी कि स्टार्टिंग मूविंग स्टार्ट किया फिर ज़्यादा दूर पहुँच गए। तो टीलोफेज दे विच 2 डॉटर सैल बन गए। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दी मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है जी। सो प्यारे बच्चों आप समा थोड़ा रह गया, थोड़ी जी आप इन्हां दी इंपॉर्टेंस भी याद कर लीए। जिहड़ी मियोसिस है, ठीक है जी, ये वेल्डर फ्लेमिंग ने लभी सीगी, इसकी डिस्कवरी की सीगी। एक तो साइंटिस्ट होर आ रहे हैं नाम उन्होंने भी, वो भी की सी, बट इन्हां दी करिए इन्हां च की हुंदी आ, माइटोसिस दे विच इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वल हुंदा वा। माइटोसिस हुंदी कित्थे आ? माइटोसिस वो हुंदी है जिथे बॉडी च ग्रोथ होनी होवे, बॉडी च छोटी है, बॉडी वड्डी होनी है, माइटोसिस हो रही है। बॉडी दे सट लग गई, इंजरी आ, हीलिंग होनी है, माइटोसिस हो रही है। इक्वल नंबर ऑफ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਈਜ਼। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਬਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਗਲੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵਲੀ ਐਂਡ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵਲੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ठीक है जी। सो ये इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिहड़े डॉटर सैल च पहुँचते हैं। बट मियोसिस की गल करांगे, ठीक है जी, इनू ऑस्कर हर्टविंग ने डिस्कवर किया सी, 1-2 साइंटिस्ट होर ने जिन्होंने प्लांट के विच एनीमल च डिस्कवर किया है। तो इस ये की होएगा, ये पहली डिवीजन रिडक्शनल है, दूसरी डिवीजनल इक्वेशनल है। पहलों क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है, 1 ਤੋਂ 2 सैल बनते हैं, दैन 2 ਤੋਂ 4 सैल बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहिंदा है। इस तो बाद की इस तो पता लगता है इहदे नाल हुंदा कित्थे है, जिथे भी गमीट बनने हैं, स्पोर फॉर्मेशन बननी है, गमीट बनने हैं, सैक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है, उत्थे मियोसिस होएगी। ठीक है जी। जिवें मनुख है, मनुख दे विच जिहड़े टेस्टिस है मेल दे विच, ओवरीज फीमेल दे विच, उत्थे मियोसिस होएगी तो गमीट बनणगे उन्हां दे। मेल गमीट नूं स्पर्म कहा जाता है, फीमेल गमीट नूं ओवम कहा जाता है, उस जगह ते होएगी। जिस भी जीव जंतु च अपने जिहड़े आ सैक्सुअल रिप्रोडक्शन हुंदी आ, गमीट्स बनते हैं उत्थे जां स्पोर्स बनते हैं उत्थे। इहदे नाल क्रोमोसोम नंबर मेनटेन रहिंदा है। किस तरह रहिंदा है? एक जीव जंतु आ, उहदा क्रोमोसोम नंबर हाफ रह गया, गमीट बन गए, हैप्लॉइड बन गया। पहलों डिप्लॉइड सी, हैप्लॉइड बन गया। दूजा जीव जंतु आ, उन्हें गमीट बनाया, वो भी हैप्लॉइड बन गया। हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड यूनियन करके जाइगोट बनया। ठीक है जी। इट इज़ डिप्लॉइड। उस तो नवा जीव जंतु बनया, वो भी डिप्लॉइड। वह गमीट बनेगा, वो भी अगे हैप्लॉइड होएगा, वो गमीट दूजे नाल यूनीयन करेगा, तो उस तो बाद वो नवा जीव जंतु, यानी कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड जी जनरेशन है वो मेनटेन रहिंदी है विद मियोसिस। साडा क्रोमोसोम नंबर भी मेनटेन रहिंदा विद मियोसिस। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ।
ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਈਟੋਸਿਸ, ਮਿਓਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਪੇਅਰ, ਗਰੋਥ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਗਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁੱਬਲੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।